Some stories don't begin with a plan. Some begin with 600 rupees saved up to buy a t-shirt. Sahil Chauhan grew up on an army campus in Delhi, the son of a soldier who served in the president's bodyguard for 30 years. Every morning, discipline left home. Every evening, stories came back. And somewhere between them, a boy dreamed of being a cricketer, an army man, and an actor all at once. And none of those happened. What happened instead was better. A friend said, "Fill this hotel management form." Sahil had 600 rupees for clothes. The form cost 800 rupees. He borrowed 200, filled it, and accidentally changed his life. He failed his first year, called his father from a hostel phone, crying. His father said, "Go enjoy your cousin's wedding. The exams are gone. The wedding won't come back." And that advice changed everything. Sahil returned, repeated the year, sat in the front row, won Best Industrial Trainee at Hyatt, won bartending competitions, bought a Royal Enfield with his prize money, and walked into Dubai with his uncle's blessing and his own hunger. When COVID hit, he lost his job. No home, no income. A friend gave him keys to an empty office on the 27th floor, glass walls, sunrise every morning. He lived there 4 months, read books, made bitters from scratch, and called it the best time of his life. That is Sahil Chauhan, not someone who fights the storm. Someone who opens the window and enjoys the view. His story is not about surviving hardship, but about thriving through it with a smile and absolutely zero complaints. His energy is contagious, he spread happiness, and this episode is for anyone who needs a reminder that resilience doesn't always look like struggle. Sometimes it looks like a man on a bullet motorbike laughing. On today's episode of Uncommonly Common, ladies and gentlemen, please welcome Sahil Chauhan. So let's do it. ठीक है Come for it. Hey boy. हाँ मिस्टर साहिल चौहान Sir, हाउ आर यू शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एज ऑलवेज एज ऑलवेज. सुपर ये क्रिकेट कैसे चल रहा है क्रिकेट मस्त चल रहा है. एक्चुअल में अभी परसों लास्ट वीक संडे को अच्छा गया गेम काफ़ी दिनों बाद. तो पिछले कुछ टाइम से रन्स नहीं बन रहे थे, बट इस मैच में रन्स भी बने, विकेट भी आई, वी वॉन. ये क्रिकेट खेलने का जो भूत है इतनी गर्मी में ये कैसे है? क्रिकेट का भूत गर्मी में, आई थिंक यार बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं. और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, जब हम अंदर जाते हैं ना फील्ड में, आई थिंक आपने सब लोगों से सुना होगा जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है, उस ग्राउंड के अंदर, उस अरीना में, और वो पिच 22 से 8 के अंदर, फिर वही दुनिया रह जाती है हमारे लिए. फिर वही चीज़ दिखती है. True. फिर वो मौसम, गर्मी, बारिश, ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं. फिर वो गेंद, बॉल, दैट इज इट. या सो मैंने तो रिटायरमेंट ले लिया है लास्ट गेम जो मैंने आपके साथ खेला मैंने कहा मेरे बस की नहीं है. बट नेवर से नेवर नहीं, ये नेवर से नेवर हो चुका है. क्योंकि उस गेम में मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि रिकवरी जो पार्ट है ना मेरा, वो पहले तो मुझे 2-3 दिन लगते थे रिकवर होने में. अब उस मैच के बाद मुझे 1.5 हफ्ता लगा है, 1.5 से 2 हफ्ता रिकवर होने में. और मुझे लगता है यही बहुत डिफिकल्ट पाथ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब हम लोग जो वर्किंग लोग हैं, अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं, वी डोंट हैव ऑल दोज थिंग्स कि कोई कोच है, आपको कोई कोच कर रहा है, नो. तो ये रिकवरी पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, बट यही मैनेज करना है. और पूरा हफ्ता मैं यही सोचता हूँ कि हाउ डू आई रिकवर, हाउ डू आई नीड टू make it much better. But see, there's an age difference also. that also, recovery body अब जवाब देती है मेरी कि नहीं सचिन, अब तुम तेंदुलकर नहीं हो, तुम ना तुम थे कभी, अब नहीं हो, पहले थे कभी. बट मैं अच्छा खेलता था. नहीं, you still play good. आप जब फर्स्ट टाइम खेले तो I could see that आपका फुट मूवमेंट, your basic techniques are great. The only thing is the fitness part is but जो आपने एज वाली बात बोली ना, I personally believe age is a number. Like when it becomes a number only when आप continuously train करते हो अपने आप को. So if you still reach 40, 45, even 50, you can still play. See, there are examples, 60-year-old man, he's playing, he's bowling, he's keeping, so I think that can... No, that's true, absolutely true. I think that, I don't know if you remember, but you were the biggest inspiration for me to transform from 108 kgs to 87 kgs. That's good to hear. I don't know if you remember that part where... No, I do remember, but... कि जब तुमने मुझे ये डायलॉग बोला था ना कि I still cannot forget. We went to play nets, right? JVC में nets करने गए थे. वहाँ पे I was batting और सिर्फ nets में मशीन से थ्रो हो रही है बॉल. उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी. और मेरा बेटा भी आया हुआ था. And you mentioned to me one quote you just मेरे दिमाग में ना वो बस गई कि आपको आपका बेटा देख रहा है. मेरी जो हालत थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, सिर्फ खड़े खड़े बैटिंग करने में. It was hot that day as well.
या बट सिर्फ बैटिंग करने में, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बॉल आ रही है, आई एम जस्ट प्लेइंग। उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हाँ, जो तुमने मुझे बोला कि आपका बेटा आपको देख रहा है, एंड दैट जस्ट हिट मी टू द कोर, कि उस दिन के बाद देन आई स्टार्टेड लूजिंग, वर्किंग ऑन लूजिंग वेट। आई मैनेज टू गेट टू 87 फ्रॉम 108। अभी मैं सिर्फ 90 हूँ ऊपर नीचे जा रहा है। बट यू नो समटाइम्स इट जस्ट नीड वन पर्सन टू रिमाइंड यू, वन गुड पुश। करेक्ट, या और वो किससे मिलेगा वो हमको भी नहीं पता। करेक्ट, वो कहीं से भी रैंडमली भी आ सकता है। करेक्ट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, सेम चीज़ कोई और कहीं पर बोलता है और वो चीज़ हमें हमारे साथ रह जाती है, एंड दैट बिकेम्स कि यार नहीं, यू नो। बट जब पेरेंट्स सिखा रहे थे तब तो नहीं सीखा, तब नहीं सीखी क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग कहीं और होता है, कुछ और चीज़ों में होता है, यू नो, माइंड इज गोइंग अदर वेज। सो साहिल कहाँ से हैं? आई एम अ हिमाचली बोनाफाइड बट born and raised in Delhi. So we have our ancestral home in Himachal, Shimla. So we go there. Even my parents now, after my father's retirement, तो वो कुछ टाइम हिमाचल में रहते हैं, कुछ टाइम दिल्ली में रहते हैं. Okay. So yes. So Himachal. I'm not. Sorry to cut you. I'm not also a typical Delhi boy also, because we have stayed in the army area. So your father was in army. Father was in the Indian Army. He served the army for almost 30 years. Wow. And yeah. Wow, respect, big respect. My father was also in army. He served for Indian Army 15 years. He was in the 1971 war. I'm sure your father must be also. No. My father actually joined the army in, I think, in 81. Okay. So yeah, my father was in 1971 war. He was actually the prisoner of war. He was in Pakistan jail for about 8-9 months, captivated in the war. So this I didn't know. Yeah, so he was like, he used to tell us stories कि उनके जो साथ जो torture हुए थे, you know how brutally the soldiers were tortured during that time. वो stories was, now I look back, तो मुझे लगता है कि उनकी जो क्या you know mental state रही होगी. Strength. It's all here. I mean. Yeah, but it's somewhere I feel that it also broke him, because he get into habit of addiction of alcohol. Oh. So that could be the reason, I feel. Now I look back, I feel that. But उनकी stories होती कि United Nations भी जब आते थे, then Pakistan Army used to tell them to behave or don't tell the truth. Otherwise, you know, जो उनके जाने के बाद जो तुम्हारी हालत होगी वो बोलने लगेंगे. But fortunately, he got released after 8 or 9 months, and उसके बाद शादी करी उन्होंने. तब हम पैदा हुए. तो this was so living in a army person's house. Army person's house. Because it's, see, especially when your father is a army personnel, and you know they are strict. No, they are. So how was yours? How was your old man? Bachpan. How was my army man? He is amazing, you know. Now with time he has changed a little bit. He has become much softer. Of course. My dad is like a coconut, and I think majority of the army people, they are like a coconut. They are like tough, strong outside, and they are like delicate inside. You know, that heart, you know, for them. So I think yeah, discipline है. रोज सुबह इतने टाइम पे उठना है. You have to at a point that we have to polish our shoes, iron our clothes by ourselves. एक टाइम पे then you have to wash your clothes also. तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ये तो बहुत ज़्यादा है. मैंने खेलो कूदो खाओ पियो सब करो, फिर कपड़े भी आयरन करो, जूते पॉलिश करो, एंड हाँ ये सब चीज़ें थी. तो ये चीज़ें उस टाइम पे अजीब लगती थी, बट देन यू नो दैट वाज सेटिंग अप द बेस. बाहर निकलना है, दुनिया देखनी है, अकेले रहना है, तो दीज थिंग्स ऑलवेज हेल्प. ट्रू. कपड़े प्रेस करने से याद आया, मेरे पापा मेरा अंडरवेयर भी प्रेस करवाते थे. वो कहते थे एवरीथिंग शुड बी क्रिस्प एंड क्लीन, एंड एवरी डे वही सुबह 5 बजे उठना है और भागना है, दौड़ने जाना है. आई मीन उस टाइम में टॉर्चर लगता था, अभी भी लगता है. सोचता हूँ तो हाँ कैसे करते थे. नहीं मैं इस मामले में आई थिंक आई वाज लकी, क्योंकि बचपन से मेरा इंटरेस्ट था फिटनेस में बहुत ज़्यादा. हाउ इट हैपेंड एग्जैक्टली आई डोंट नो. आई हैड माय डैड हैड अ पोस्टर ऑफ सिल्वेस्टर स्टैलोन एट होम. तो मुझे लगता था वो मेरे फादर की पिक्चर है. अच्छा. हाँ, इट्स हिज इमेज. और क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन की पोस्टर फ्रॉम द मूवी रॉकी 2, हेयर बैकवर्ड्स एंड यू नो नाइस फिजिक, वो बेल्ट पहन के बॉक्सिंग ग्लव्स. मेरे घर में बॉक्सिंग ग्लव्स भी थे फादर के. ही यूज्ड टू डू बॉक्सिंग इन द कॉलेज डेज. तो ही हैड दैट फेस कट, नाइस फेस कट. तो मुझे लगता है फादर की पिक्चर ही है. तो अब जब फादर ऐसा तो बेटे को होना पड़ेगा वैसा, नो. तो आई हैड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वट एवर, भागना कूदना, क्रिकेट, ये वो सो. और somehow by the age of 14-15 I started playing
फुटबॉल आई थिंक एट 8 or 9 एंड क्रिकेट ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। खेलते खेलते फिटनेस अच्छी हो गई। स्कूल में पता नहीं किसने अफवाह फैलाई मेरे स्कूल में कि साहिल के फादर उसको 5 बजे उठा के दौड़ाते हैं डंडे के संग। एंड आई गॉट टू नो दिस आई थिंक व्हेन आई वाज इन 12th grade। तो मैंने कहा यार कौन फैला रहा है सब चीज़। बट ये सच नहीं था। ये सच नहीं था। Lucky you. लकी है। तो बट माय फादर यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट कि मैं कहाँ खेलने जा रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फुटबॉल का मैच है, वॉलीबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच है, किससे है, व्हाट लेवल। तो हाँ, उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी। देन ही यूज्ड टू टेल कि यार हम लोग कॉलेज में ऐसा करते थे, हमारे साथ ऐसा होता था, उनकी अपनी स्टोरीज। ही वाज वन ऑफ द टॉप एथलीट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बैक इन द डेज। सो ही यूज्ड टू प्ले हॉकी। वो सब गेम्स खेलते थे बट हॉकी वाज हिज प्राइम लव। तो हाँ, उससे तो बचपन ज़्यादा खतरनाक नहीं था जैसे मैं समझता हूँ। खतरनाक था एक्चुअल में। पिटाई मेरी बहुत हुई है। Okay. इतनी पिटाई हुई है कि जो लास्ट पिटाई हुई थी मेरी उसमें माय मदर वाज क्राइंग, माय ग्रैंडफादर केम टू स्टॉप माय फादर, ही कुडंट डू इट। मेरा भाई दूसरी जगह पे बैठ के ही इज क्राइंग लिटरली बिकॉज वो मुझे देख रहा है कि मैं किस तरह से पिट रहा हूँ। तो उसके आंसू निकल गए, हालांकि उसको कुछ बोला भी नहीं गया और मैं मार खा रहा हूँ पापा से। तो ये मेरी लास्ट पिटाई थी। तो बहुत, और पिटाई किससे हुई अगर आपने देखा हो कि जब जो हॉर्स रेसेस होती हैं उसमें जॉकी के हाथ में एक स्टिक होता है ना। तो because my father was in the president's bodyguard, which is not a cavalry regiment, but it has horses, so which Yes. escorts the presidents during the 26th January parade. You've seen those. So same regiment. So we have those sticks and things at home. तो मेरे को फादर ने, पापा ने उस स्टिक से मारना स्टार्ट किया because I did something, you know. तो उससे मारा और वो उसकी लाइन, वो कैसा होता है, उसके अंदर ना बैम्बू होता है, बांस, और एक लोहे की वायर भी होती है। एंड देन इट इज सराउंडेड बाय लेदर। इट इज सो नाइसली, उसको क्या बोलेंगे, वोवन करते हैं उसको, इतना बढ़िया लगता है सामने से। उसको वो हॉर्स को हल्का सा चाबुक टाइप बोलो आप, उसको हल्का जॉकी राइड करा, हल्का सा मारता है, देन हॉर्स स्टार्टेड। तो मेरे को उससे पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि वो टूट गया। उसके धागे खुल गए जो कि लेदर से बांधे हुए होते हैं, यू नो, एवरीथिंग, वो टूट गया। ऐसा क्या किया ऐसा तुमने? बस अभी क्या बोले सर, ये बहुत ही छुपी हुई कहानियां इसको रहने दो अंदर ही। तो उतनी पिटाई हुई है। अब मैं अगले दिन स्कूल जा रहा हूँ तो मेरे हाथों पे ऐसे निशान पड़े हुए हैं जैसे मूवीज में हम देखते हैं। बैक पूरी छिल चुकी है लिटरली, यू नो। कोई मारता लाल नीला काला, वो वाली स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो अभी हम हंस रहे हैं बट दैट टाइम नहीं। तो मुझे याद है बिकॉज जब ये हुआ देन आई थिंक आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ हुई, बट 11th में आपका टेस्टोस्टेरोन ना लाइक इज लिटरली हाई। तो पहले जब उन्होंने 2-3 मारा तो मुझे दर्द हुई, बट उसके बाद ना वो बॉडी सुन हो गई। तो मैं पिट रहा हूँ, बट देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ, ये दिखाने के लिए कि मुझे लग रही है, बट उस टाइम मुझे लग नहीं रही थी। ये अभी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट उस टाइम पे जो माहौल था घर में वो वेरी टेंस्ड। ऐसा कुछ तो किया ही होगा तुमने जो तुम, मतलब मैंने ऐसा वो भी नहीं किया था, बट हाँ कुछ किया था, बट उसकी सज़ा ज़्यादा मिल गई। बट आई थिंक वो सज़ा इट हेल्प मी टू ग्रूम एंड लर्न कि भाई नहीं, ये चीज़ें इस जगह इस लाइन में जाना ही नहीं। मतलब जो तुम कर रहे हो तुम्हें फन लग रहा है, बट वो दूसरे के लिए फन नहीं हो सकता। तो बट इट वाज गुड। सो वर यू अ रेबेलियस किड? नहीं यार, वी आर, दैट इज द पॉइंट दैट आई मिस, और मैं थोड़ा सा रिग्रेट करता हूँ कि हम रिबेलियस किड नहीं है। मिस क्यों करते हो? तो अच्छी बात है। नहीं, इसलिए मैं मिस करता हूँ, अगर रिबेलियस होते तो वी वुड हैव एक्चुअली ब्रोकन जो रूल्स हमारी सोसाइटी ने हमारे आजू बाजू सेट कर रखे ना, कुड हैव डन मच बेटर व्हाट आई एम डूइंग। कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, आर्मी, मिडिल क्लास फैमिली, तो जो चीज़ें हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो हमें सिखाई गई है अननोइंगली, तो हम उसी पे जाते हैं। हम रिस्क लेते नहीं है कि भाई मेरे को, इफ दिस इज माई पैशन लेट मी फॉलो माई पैशन, बिकॉज हमारे पास वी डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक ऑन। सो अगर जैसे होटल मैनेजमेंट में हुआ, दैट हैपेंड बाय चांस नॉट बाय चॉइस, तो वो हुआ, तो उसमें अब उसी में करना है जो करना है, करियर इसी में बनाना है, यू नो। तो हाँ, अब आई कांट चेंज माई करियर लाइन पाथ व्हाटएवर। सो एजुकेशन वाइज हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? स्टूडेंट एवरेज, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स, यू नो, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है, बी इट सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, एक्टिंग, जो प्लेस वगैरह होते थे एनुअल डेज वगैरह, उसमें जाना है, पार्टिसिपेट करना। टीचर्स लेके जाती थी कि मैम नहीं प्लीज़ 10th है, पढ़ने दो, पापा मारेंगे। नहीं बेटा नहीं, ये थोड़ी देर का ये करना है आपको, यू हैव टू डू दिस। अब उसमें कि घर को संभालें या टीचर को संभालें, सो वी हैव टू, वी एक्चुअली डिड इट एंड वी डिड प्रीटी वेल। तो बाकी पढ़ाई के अलावा सब चीज़ें बढ़िया चलती थी, यू नो। जो जोनल्स होते हैं स्कूल में, इवन CBSE टूर्नामेंट्स हुए थे उस टाइम पे, फीफा, यू नो, एवरी ईयर फीफा गिव्स मनी टू ऑल द कंट्रीज टू प्रमोट फुटबॉल। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था बैक इन 2005, there was a tournament that happened, I think I forgot the name, Indian Youth
football championship, something like this. And then there was CBSE tournaments. All the CBSE schools compete. So usme we excelled, as a team. So I think मतलब sports में अच्छा किया काफी. So what was your ambition? What did you want to become? Your ambition. This is the problem again. Ambition as such कुछ clear नहीं था दिमाग में. I either wanted to be a cricket player, I either wanted to be a army personnel or an actor. तो ये 3 चीजें दिमाग में थी और 3 चीजों में कुछ भी नहीं है अभी. बट वो तीनों चीजें अंदर है मेरे. हाँ, वो that is very तीन evident. पर्सनालिटीज Yeah. एग्जिस्ट करती हैं. Yeah. तो ऐसा No, I see that. You carry the pride of India on your sleeves. always On your love and passion for the country. Sometimes मुझे भी लगता है ये तेरे को आर्मी में होना चाहिए. The way you are and you don't you're not I wouldn't say anti-China, but the way you protect the India's dignity and pride in front of anyone, for the matter of fact, anyone, right? It's commendable, but I see that passion. Good you mentioned this point. A lot of people, a lot of my friends and even my family would think that I'm anti-China. I'm not. Okay. My only thing is that we should use as much as possible Indian products. True. Very simple. The past that we have had with our neighbors, I do not want my major chunk of money to go there. As simple as that. I do not hate Chinese. I do not hate Pakistanis. I have Pakistani friends. We play cricket in same team. We share food. We share moments. So I could, if I had problem, I won't play with them, right? Yeah. So I'm not anti. The only thing is, if I get a chance to buy a T-shirt or shoes, I'll buy an Indian brand. It can be another country's brand. I don't have problem with Australian, US, European things. No, it's just that I don't want my money to go there. That is it. Yeah. Pretty simple, right? There's no anti. Absolutely, and that's what is happening in Indian economy right now. That there are a lot of local manufacturers which is coming up. You don't need to go and buy Nike when you have a brand of your own in India, which is as good as Nike is. Exactly. So it is 100%. there, but I feel that manufacturing wise we're still very far. Yes. So we have our own limitations, but Correct. your point of view is respected and it makes sense. So yes, I mean इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं. आप शूज ब्रांड से लेके आप whatever garments हैं, आपके यूजेबल आइटम्स हैं, it is all available there. We are not as big as our neighbors in terms of manufacturing. Agreed. अगर मुझे एक मोबाइल के चार्जर की वायर लेनी है, it will be made in China. I can't look for it, in India. Yeah. So that is understood. But if the major chunk which I can get somewhere in India, I'll buy an Indian product. And that is as simple as that for me. So from जब तो क्रिकेटर क्यों नहीं बने और एक्टर क्यों नहीं बने? Why not army person also? दिमाग नहीं था उस टाइम पे. जो आपकी एक एज होती है ना, when you should play cricket or when you prepare for the army, you do your NDA, you prepare for CDSC exams, वो एज निकल चुकी थी या निकल रही थी. जब तक दिमाग ही नहीं था कि यार if I have to do this, वो हम उसी टाइम मजे ले रहे थे उस. So पापा से कभी गाइडेंस ली अबाउट आर्मी? पापा was always clear कि जो करना है आप करो, अगर आर्मी भी करनी है then you have to study for this. So हमारी यूनिट में like the officers basically they took a step initiative कि they asked us if you want to study something we will help you. So उन्होंने tuitions लगवाए for a little time period whatever. So we did that as well. They said that if you want to prepare for CDSE NDA then this is what you have to do. But उस टाइम इतना दिमाग नहीं था कि यार if I love something so much then I should go for it basically. And I didn't do it. So did you because army पर्सनल जो है ट्रैवल अराउंड बहुत करते हैं हर 3 साल में. सो यू लिव्ड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज? आई थिंक द best or the worst part I don't know, but the regiment my father was in, the president's bodyguard, it is based in New Delhi. Okay. And in Rashtrapati Bhavan, the president's house. तो हम लोग, मैं अपनी 22 साल तक तो वहीं रहा, but we went for a couple of years in between 97, 98. We went to Siliguri in West Bengal. So we lived there for 2 years. It was a great time period for us as an outing. So I did my 4th and 5th standard there. Then we came back to Rashtrapati Bhavan, and then we again went for a couple of years to in Delhi itself, Delhi Kent area. So that was the only travel that we did. But otherwise, yes, in the army, majority of the time, so it's 3 years everywhere. And was it army school? Yes, always. What is the difference between army school and the other schools? Is there any difference? Soul. What do you mean? Soul है. Army school में ना soul है. Now army schools are built like a building structure, but back in the days it was army barracks. तो army barracks होते थे, ठीक है. उसके अंदर classes हैं. You have a huge playground. आज के टाइम में people
the children would go in a school bus to a school. हमारे टाइम में शक्तिमान ट्रक होता था, जो आर्मी का ट्रक होता है ना, you would have seen border movie, you would have seen LOC or any other movie, तो उसमें आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं. आज के टाइम में there are new trucks called Stallions. Okay. Back in the days it was Shaktiman. It was called 3 ton. So that was our the bus, school bus. हमारे स्कूल में there was an army tank, there was a fighter jet which was there placed. तो रोज अगर हम स्कूल जा रहे हैं अन आर्मी ट्रक एंड आर्मी वाले भैया वर्दी में इन द यूनिफॉर्म दे आर ड्रॉपिंग अस एंड वी आर सीइंग द फर्स्ट थिंग दैट वी एंटर इज सी दैट आर्मी जेट वी सी द आर्मी टैंक्स. तो क्या व्हाट इज द माइंडसेट एंड टीचर्स अ लॉट ऑफ टीचर्स वर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड ईदर देयर पेरेंट्स और दे वर मैरिड टू द आर्मी ऑफिसर्स सो दैट डिसिप्लिन केम. However, PT teachers, the physical education teachers were strict as anything. You know, पानी पीने जा रहे हो आप 8th-9th पीरियड में अननेसेसरली बुला के चपेट दिया. क्यों? ऐसे ही क्योंकि आप साहिल चौहान हो, आप साहिल चौहान के गैंग वाले दोस्त लोग हो. अच्छा, so you, आप तो घूम ही रहे होंगे तो ना. तुम क्या नोटोरियस थे स्कूल में? वो क्या लगता है सर अभी मतलब ये नोटोरियस तो बहुत पता नहीं क्या एक अच्छी सी फील आती थी कि कमेंट पास करने में टीचर कुछ बोल रही हैं तो एक कमेंट पास कर देंगे जी ऐसा फलाना ढिमका. बड़ी अच्छी फील आती है सबके सामने, बहुत कूल बन गए. नाउ व्हेन आई लुक बैक मैं कहता हूँ कि यार क्या भैंस क्या, मैं खुद को चपेट देता भी यार बाय गॉड इतना कि तू भाई इधर आ तेरे बहुत ज़्यादा छलूने काट रहे हैं. तो मतलब वैसे काइंड ऑफ किड बाय हार्ट आई वाज ऑलवेज बीन आई थिंक आई वाज ऑलवेज इन अ गुड गाय. बट स्कूल में जाते ही बिकॉज वो कूल बनना था सबके सामने तो अनशंट चीज़ें कर देते थे. पढ़ाई में मेरा दिमाग तेज था बट मैं आई डिडंट यूज इट इन द राइट वे. That's this I realized when I think in my 9th standard I was studying physics. So back in the days until 10th it was very basic physics, chemistry, bio, basic one, and then after that you choose your stream. So until 9th when I was studying physics मेरा interest उसमें बहुत ज़्यादा हो गया था. I used to enjoy physics a lot, specifically physics, not even chemistry or even bio. Physics and math I used to love, and then studying English and Hindi as a language I used to love this. बाकी subjects में मेरा इतना interest नहीं था, but obviously खेलने में था. But as far as academics is concerned, this was my I think core. और अगर थोड़ा सा push होता या फिर थोड़ा कोई समझा देता और अच्छे से कि भाई तुम अच्छा कर सकते हो, मेरी writing अच्छी थी, thoughts were good. तो हाँ शायद would have been literature side में या कोई चश्मा लगा के एक you know could have been that person as well. So what did you choose? After that I didn't had I couldn't choose anything because marks इतने कम थे मेरे को that I had to go for humanities or people also called that arts or humanities side. So yeah, I had to go for that. But my father went to the school. There was like, sir, is there any possibility he can go for commerce? Because he was a commerce student. So and how the society looked at arts or humanities was कि यार ये तो बेकार है. हाँ, correct. But we never realized all the civil services or majority of the civil services people they come from the humanities background. And when you do humanities, you have big array to choose for the streams. You can do anything like literally. This thing we didn't know, but this was bound to happen. नहीं सही बोल रहा हूँ क्योंकि I'm also art student. There was no choice. Marks कम थे. So obviously commerce was out of equation. Mathematics I was very poor. So मेरे को तो नंबर से डर लगता था बहुत. तो so yeah, arts is a choice, not a choice, but yeah, people do look you down. You know, people वो लोग सोचते हैं कि arts is the last option. So आपके पास कोई option नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो तभी आप arts में. हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसे डिजाइन हो रखा है ना कि साइंस टॉपर्स है. they are the toppers, then commerce, and then you have the arts. But that's not how it is actually. Worldwide also. True. But yeah, who cares? Who cares actually? It doesn't. I feel that it doesn't define your destiny. It doesn't define your path. I think that nothing defines us. Yeah. No failure, no success can define us. Correct. As again, it's a bookish thing. The life is a marathon. It's not 100 meters. Correct. Right. Correct. So until the last chapter until the last page is not written, nothing is. Yeah. So after this chapter of yours, you went to college. You studied in Delhi College? I studied in Himachal. Okay. Again, I went to IHM, Kufri, Shimla. Oh, so अच्छा conventional graduation नहीं किया, सीधा IHM. हाँ, conventional graduation नहीं, but the hotel management is also a degree. It's a graduation. कहाँ से आया, दिमाग में कैसे आया graduation? अरे, this has a very funny story. So when I was in 11th and 12th, okay, so my uncle, my chachu, who has been in the UAE and he's a big name in the liquor industry in here. So he was here since before I think I was born, even since 88. So he came in I think
I think yes. 1988 he came to the UAE and he started working in hotels, and then he went into a beverage business, you know. And I think he was one we used to look up to, you know, because every other year वो he used to live in Abu Dhabi, but हम कहते थे कि भाई चाचू दुबई से आ रहे हैं, तो दुबई वाले चाचू आ रहे हैं. He used to stay with us for a while. Then he used to go to Himachal to, you know, meet his mother and other people as well. तो हम उनको देखते थे कि यार इनके जैसा बनना है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता. तो he told me around I think in 2004 और 5 कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं इंडिया में. देयर विल बी अ लॉट ऑफ होटल्स वुड बी ओपनिंग, सो होटल मैनेजमेंट कर लेना, एंड देन देयर इज अ गुड चांस, एंड देन वी आर हियर सो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट. तो बस एक वो चीज़ थी, बट मैंने उस चीज़ को भी बहुत लाइटली लिया. तो वन फाइन डे 2006 January, I think, no, or 2006 January, I think, one of my friends named Harsh, अगर आप देख रहे हो तो Harsh Bharadwaj, he came to me, he's like, यार मैंने होटल मैनेजमेंट का फॉर्म भर दिया है, तू भी भर दे. तो मैंने कहा भाई क्या करना होटल मैनेजमेंट. तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, चाचू ने भी बोला था थोड़े टाइम पहले, ही इज ऑल्सो सेइंग. तो मैंने ना 600 रुपये अपने पास बचा के रखे हुए थे कपड़े खरीदने के लिए. घर में मेहमान आते हैं, 100 रुपये देते हैं, 200 रुपये देते हैं, तो वैसे ऐसे करके आई हैव सेव्ड 600 रुपीज़ कि भाई टी शर्ट जीन्स खरीदूंगा तो करूँगा. तो वो आया भाई ऐसा आया फॉर्म 800 रुपये का. मैं भाई 800 रुपये का फॉर्म, भाई 600 में 2-3 टी शर्ट्स आ जाएंगी, 2 जीन्स भी आ सकती हैं, यू नो. तो मैंने कहा यार चलो ठीक है फॉर्म भर देते हैं. घर से और 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए, वी बॉट द फॉर्म भरा और डिपॉजिट करके सबमिट करके आ गए. अच्छा जी, तो अब उसमें बोला कि आपका जो है डेट, एग्जाम का डेट ये रहेगा. तो अगेन सेम फ्रेंड कि भाई क्या तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है. मैंने एक एकेडमी पता की है जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करवाती है. अच्छा जी, तो वहाँ गए, दे आस्क्ड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स, मैं कहा भाई दिस इज दिस थिंग. तो पेरेंट्स कहे ठीक है, इफ यू थिंक दिस इज द राइट थिंग और यू हैव टू डू दिस, गो फॉर इट. So father always supported? Father never said anything. My mother and father, I think they were pretty clear. फेल मत होना, ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो मैंने कहा जी ठीक है, कोई चक्कर नहीं. गए, फॉर्म भरा, डेट आ गई, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती की, बट आई लाइक द इन्वायरमेंट वहाँ पे थोड़ा सा. तो डेट आ गई, वी पास एग्जाम, ऑब्वियसली इट्स रैंकिंग सिस्टम. तो उसका रैंक बहुत अच्छा आया, मेरा रैंक बहुत पीछे था. मेरा था 2784 समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो हम प्लान तो ये था कि भाई दोनों दोस्त साथ में रहेंगे, एक ही जगह पे कॉलेज लेंगे. तो उसने चंडीगढ़ ले लिया. अब आई डेंट हैड द ऑप्शन ऑफ चंडीगढ़, आई हैड ऑप्शंस ऑफ other colleges. I think all the good colleges, as they are said, Delhi, because Delhi Pusa was one of the best colleges. Then we have Mumbai. Then we had I think Bangalore. I'm not sure. All the good colleges were gone. So I had only option of Himachal. I had Srinagar. I had Gangtok in Sikkim. So these colleges were left. तो फिर पापा ने बोला, because we are from Himachal, if you go to Shimla also, there we have our relatives to look after. You know, नया लड़का जा रहा है, you know, बिगड़ ना जाए. All these things are in the head. So I took Himachal, IHM Kufri, Shimla. So फिर वहाँ से it started a different journey for me. You know, so it was fun actually. It was fun, literally. Take us through. Oh man. First day of your college. Oof, first day of But my what was college. your expectation when you entered the college? What was your expectation? The I college ऐसा had- होगा, I had- IHM में क्या करने वाला हूँ, क्या नौकरी मिलेगी? You had any clue about I this? had zero expectations, but I think I had a little bit of an idea because चाचू होटल बैकग्राउंड से थे, so उन्होंने समझा रखा था. और उन्होंने मेरे को एक स्पेसिफिक चीज़ बोली थी कि ना, go for chef, be a chef, because chef की जो लाइफ स्पैन होता है, it is longer, you know, from a very Career perspective. career perspective से. और जो traditionally if we see how the chefs are, they have more power. Then I think anybody in the hotel, if it's an amazing executive chef, he can even ask the GM to leave his kitchen, you know, and then he'll be supported by the owners or whatever, and that's how they are basically. So ये idea था, and he said that go you know, learn how to be a good chef and this and that blah blah. तो ये मेरे दिमाग में थी. मैं ठीक है भाई, शेफ बनेंगे एंड देन संजीव कपूर की तरह घर घर जाके टोस्टर बेचेंगे. बट एनीवे, सो जैसे ही मैं द कॉलेज ज्वाइन किया, सो बहुत ही स्पेसिफिक था. बट हमारे कॉलेज में ना डिफरेंट ही सीन था. कॉलेज में अटेंडेंस का कोई चक्कर ही नहीं था. तो हम गए, किस कॉलेज में होता है? तो नहीं, देयर इज लाइक बेसिक 60% चाहिए दिस. हमारे कॉलेज में देयर वाज नो नथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो हम कॉलेज गए, तो हमारे सीनियर्स लाइक कहाँ जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हैं. अरे कहीं नहीं जाना, वो हो जाता है, आसान से पेपर हैं, पढ़ लोगे, एक दिन में हो जाता है. मैं कहा जी हो जाता होगा जब सब लोग कह रहे हैं इतने दिन. तो भाई कहीं नहीं, कॉलेज नहीं गए. एक दिन नहीं गए पूरा साल फर्स्ट ईयर. हाँ, मेरे ख्याल से मैं 2 या 3 दिन कॉलेज गया हूँगा अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्स. तो अब रिजल्ट आया, फेल हो गए. कोई होटल मैनेजमेंट में कैसे फेल हो सकता है भाई?
होटल मैनेजमेंट कैसे फेल कर सकते हो आप? तो अब भाई मेरे को लगा यार बात तो सही कह रहे हैं लोग, कैसे कर सकते हैं। अब एक ईगो थी कि हम भाई 12वीं पास करके आए हैं और हम पढ़ लेते हैं, हमने करा है पहले भी, 9th भी करी, 11th भी किया, विच इज़ सीन एज अ मोर डिफिकल्ट जो उसका वो है सिलेबस है। तो ये दिमाग में था, बट होटल मैनेजमेंट वॉज टोटली डिफरेंट। किस वे में कि भाई वो जो स्पेसिफिक टर्म्स है, जो फ्रेंच टर्म्स है या जो इंडस्ट्री टर्म्स हैं, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे एग्जाम में। फर्स्ट ईयर वेरी बेसिक, बट हमारे 9 सब्जेक्ट्स थे, तो 9 सब्जेक्ट्स। तो अब पढ़े ही नहीं, तो एक दिन पहले जब किताब उठाई समझ में नहीं आ रहा। वो जैसे तारे ज़मीं पे मूवी में नहीं वो बच्चे के आगे ऐसे ऐसे नंबर्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो वैसे आ गए। मेरे तो समझ नहीं आ रहा पढ़ना क्या है भाई। और दोज वर कॉल्ड horse the ovaries. That was the name. Not that we were used to say that, but fun के लिए हम वो लोग names use करते थे because तो फर्स्ट ईयर फेल हो गए और मेरी ईगो भाई साहब हर्ट हो गई। एक हर इंसान की एक छोटी सी होती। उस दौरान मेरे आई थिंक 2 कज़न्स की शादी थी ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, और आई कॉल्ड माई फादर दैट टाइम। तो मैं बोला, मैं पापा एक बात करनी है आपसे। बोला, मैंने कहा यार मैं फेल हो जाऊंगा। बोले कैसे, एग्जाम्स तो बचे हैं अभी। मैंने कहा नहीं, मेरे जो 4-5 एग्जाम्स हुए हैं उन 4-5 में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो बोले कोई चांस नहीं। मैंने कहा नहीं कोई चांस नहीं। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। 17-18 साल का हूँ, फूट फूट के रो रहा हूँ फ़ोन पे। एंड आई थिंक दैट मेड मी मच मोर स्ट्रॉन्गर वो टाइम, क्योंकि पापा ने बोला हो गया ना, छोड़, मस्त हो जाना, अब तो तू जाके वापस नहीं लिख सकता। मैं कहा नहीं लिख सकता, बाकी 4 एग्जाम पढ़े हैं, या तो दे दे या तो मत दे। और दैट टाइम पीरियड मेरे कज़न्स की शादी थी, तो हमारे मम्मी मौसी दिल्ली से ट्रैवल होकर आ रखे थे, बाकी लोग जो आस पास रहते हैं वो लोग भी आ रखे थे। बोले शाम को जा, शादी में जाना, आराम से खा पी, इंजॉय कर, सबसे मिल, डांस कर, इंजॉय दिस टाइम, क्योंकि अब एग्जाम्स तो आपको दोबारा देने पड़ेंगे, बट एक शादी दोबारा नहीं होगी, तो एंजॉय कर लो। आप इंजॉय कर लो। दैट्स अ गुड एडवाइस। वाज अ ग्रेट एडवाइस आई थिंक। और मैं रोते रोते मैं कहा ये तो डांट ही नहीं रहे। क्योंकि मुझे ये था कि यार 1 साल की फीस, 1 साल की फीस चली गई, हर महीने का खर्चा, आपका रेंट है, आपका खाना पीना है। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी कि यार यू नो पैसे पैसे पैसे, क्योंकि मिडिल क्लास में यही है कि पैसे सेव कैसे करने, फ्यूचर कैसे बनेगा। ये फीस चली गई, हर महीने का खर्चा, आपका रेंट है, आपका खाना पीना है। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी कि यार यू नो पैसे पैसे पैसे, क्योंकि मिडिल क्लास में यही है कि पैसे सेव कैसे करने, फ्यूचर कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें। तो आई थिंक दिस थिंग मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। दैट हैपेंड। और जब फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट करने बैठे, देन ऑब्वियसली यू हैव न्यू गाइज हु कम्स। अब हमारे एक सर थे, अब उन्होंने मजाक बनाना स्टार्ट किया मेरा, एंड आई हैड अ वेरी स्पेसिफिक माइंडसेट कि भाई फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहा हूँ, मैं पढ़ना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं समझ सकते, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अब रिपीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आगे वाली बेंच पे बैठा हूँ। तो हमारे एक सर हैं, सर श्यामा गन्ना अगर आप देख रहे हो तो वो समझा रहे हैं, आई थिंक अकाउंट्स बैकग्राउंड ही नहीं था, तो अब समझना पड़ेगा बेसिक से। मैंने कहा सर ये समझ में नहीं आया। हाँ तू तो दूसरी बार में समझ रहा है, दिस एंड दैट। तो उन्होंने ताना मारा और मैंने वो कड़वे घूंट पी लिए, क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैं कहा ठीक है सर, कोई चक्कर नहीं, आप बोल लो, आप जो बोल सकते हो। तो समझा किसी तरह, फर्स्ट ईयर क्लियर किया। सेकेंड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो अब हम फर्स्ट ईयर क्लियर करने और सेकंड ईयर थोड़ा सा इजी होता है, अब थोड़ा सा और छाती चौड़ी हो गई कि यार चलो अब ये चीज़ तो हो गई एटलीस्ट। बट हाउ पीपल सी यू अराउंड दैट पीरियड इज इम्पॉर्टेंट, यू नो। हमारे बहुत से जानने वाले, यार इसने तो कुछ करना ही नहीं था, पैसे बर्बाद कर दिए माँ बाप के, रिलेटिव्स। तो और ये है ट्रू, एवरी फैमिली हैज। तो पैसे बर्बाद कर दिए, यहाँ के मस्ती मजाक कर रहे हो। कॉलेज की रेपुटेशन इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि लोग जाते ही नहीं थे। और शिमला में संजौली एक बहुत ही छोटा सा शहर है, ऑलमोस्ट हर बंदा हर इंसान को जानता है। तो कि भाई घूमते ही रहते हैं, कभी घूमते यहाँ दिख जाते हैं, कभी घूमते वहाँ दिख जाते हैं। तो हमारे दिमाग में तो ऐसा था ही नहीं कुछ भी, बट ये सब चीज़ें सुनने को मिली वाया या कभी कभी सामने भी। तो शायद उनका भी अच्छा इंटेंशन होगा अगर बोल रहे हैं तो ये बोला, और मेरे को काफ़ी ये चीज़ें इफेक्ट हुई। इफेक्ट इन द सेंस, वैसे इफेक्ट नहीं हुई कि डिप्रेशन में चले गए हम, बट ये चीज़ें मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेट करती है। आई थिंक 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक को आप ऐसे मोटिवेट करते हो, हाँ यार तू कर सकता है, यू कैन डू इट, कम ऑन। और एक लोग होते हैं चल तेरे से नहीं होगा। तो मुझे वो चीज़ हिट करी, मुझसे कैसे नहीं होगा भाई, हम हिला देंगे पहाड़ भी। बट वो चीज़ अंदर से आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई चलता फिरता बोल के चला जाए। जब तक कोई यहाँ हर्ट नहीं होगी ना, तब तक तो हमें कोई नहीं ला सकता, हम अपनी जगह पे ही हैं दोस्त। तो एनीवे वो हुआ,
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए गए। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, हमें किसी ने प्रॉमिस किया था भाई, किसी बंदे ने होटल में कि हम लगवा देंगे तुम्हारी ट्रेनिंग। ठीक है जी, अब वो बंदे भूल गए, टाइम पीरियड निकल गया। अब नाउ यू कांट गिव योर एप्लीकेशन कि वो एक सर्टेन टाइम होता है कि इसके बीच में हम एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने कहा सर आपने बोला था आप करवा दोगे यार, सॉरी ऐसा हो गया वैसा हो गया। यार ये बहुत दो। तो अब आई टुक माई रिज्यूमे, आई वेंट टू होटल दिल्ली में। तो हायत होटल गए, बैक एंट्रेंस, अंदर जाने नहीं दिया। तो बोले रिज्यूमे यहाँ रख दो, HR तक पहुँचा देंगे। डेट निकली जा रही है, वी हैव टू स्टार्ट आवर ट्रेनिंग इन कपल ऑफ वीक्स। पापा को फ़ोन किया, मैं कहा यार पापा ऐसा ऐसा हो गया। क्या हो गया? मैं कहा वो तो घुसने नहीं दे रहे होटल में। थोड़ा सी हंसने की आवाज़ आई फ़ोन पे। ठीक है कोई नहीं, घर आ जा, खाना वाना खाते हैं फिर बात करते हैं। मैं कहा ठीक है। घर गए, बैठे खाना, क्या हुआ? मैं कहा जी ऐसे ऐसे गया था। कहाँ गया? मैं कहा ऐसे 2-4 होटल गया था, फिर हयात भी गया। पहले इट्स हायट, तो बहुत ही देसी लैंग्वेज में उसको हयात कहते हैं, दिल्ली या इंडियन हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं कहा हयात भी गया था, तो वहाँ पे घुसने नहीं दिया। चल कोई नहीं, कल सुबह रेडी रही हो। मैं कहा रेडी रही किस लिए? रेडी रही हो, मैं ऑफिस से आऊँगा इतने बजे, देन विल गो। कहाँ जाएंगे? रेडी रही। ठीक है, खाना खाया, इवेंट बैक टू वर्क। नेक्स्ट डे उनके संग चेतक पे बैठे, किक मार के और चले गए जी। स्कूटर पे खड़ा किया, मेन लॉबी सेंटर। मैं कहा पापा पीछे से जाना होता है। मेन लॉबी सेंटर हुए, वहाँ पे गए, बेल डेस्क में उनके कोई पुराने फ्रेंड थे, उनसे मेरे अरे क्या हाल है? सब बढ़िया। HR में कौन है भी? हेड ब्रिगेडियर हैं। ब्रिगेडियर, ये मेरा कार्ड जरा उनको दे देना एक बारी। अच्छा जी, तो कार्ड वार्ड दे देना उनको। ठीक है जी। तो उन्होंने किसी तरह कार्ड पहुँचवाया। तो HR के जो डायरेक्टर थे वॉज ब्रिगेडियर, ही वॉज रिटायर्ड ब्रिगेडियर फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो उनको कार्ड पहुंचा। देन उन्होंने पापा को बुलाया कि आप मिलने हैं। तो उन्होंने बोला सर ही इज़ माई सन, ही इज़ डूइंग होटल मैनेजमेंट, दिस इज़ हिज CV इंटर्नशिप। तो उन्होंने बोला ओके लेट मी सी। तो उन्होंने ऐसा बोला, चाय वाई पी एंड देन वी लेफ्ट। थोड़े दिन के बाद जनरली होता क्या है, आपको कॉलेज से NOC देनी पड़ती है, होटल सेंड दी कन्फर्मेशन प्रोसेस है। ऐसा मेरे टाइम में कुछ नहीं हुआ, सीधा नाम आया साहिल चौहान, हाँ जी यस प्लीज़ कम इन, ऐसा करके। तो जब सारे इंडस्ट्री ट्रेनिंग बच्चे इकट्ठे होते हैं ना होटल के बाहर, द डे यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग, वहाँ पे सीधा नाम था। कोई लेटर नहीं था मेरे पास, कॉलेज से कोई NOC नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सीधा। अब ये चीज़ मेरे को ना बहुत छू गई। क्यों छू गई? कि वैसे तो ईजी था, आप गए, आपको मिल गया सब कुछ ईजीली, बट मेरे को क्या चीज़ छुई, मैंने कहा यार फादर ने इंडस्ट्री ट्रेनिंग तो लगवा दी है, बट यहाँ एक्सेल मुझे करना है। करेक्ट, एक्सेल करना है। और चाचू से कभी कभी बात होती तो वो कहते थे कि यार लॉन्ग आवर्स विल बी देयर। तो मैं मेंटली प्रिपेयर था, लंबा टाइम काम करना, कर लेंगे। प्याज काटने हैं काट लेंगे, फट्टियाँ उठानी हैं उठा लेंगे, बट यहाँ पे ना साहिल चौहान अपना नाम छोड़ के जाएगा, ये बात गारंटी है। भाई वी स्टार्टेड वर्किंग अगेन, नई चीज़ें हैं, बट बहुत फन किया। आई थिंक एन अमेजिंग पीपल अराउंड मी during my industrial training, in terms of mentors, in terms of the guys who I was working with, जो और colleges से interns आए थे। I had great time. During the time period, I realized that I started loving beverages more. तो जो शेफ बनना था ना, वो धीरे धीरे फेड अप हो गया, क्योंकि मैंने सर्विस को इतना एंजॉय करना स्टार्ट किया। I have a friend who I've not spoken to for a very long time, Rahul Kanojia. He is one of the chefs in Ga restaurant in Bangkok. वो अलग क्रेजी गाय है, ठीक है, फॉर हिज आर्ट। तो जैसे हम बैंक्वेट में किसी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, बॉटल्स लगा रहे हैं, तो आता है चलते फिरते आएगा, और हम 2-4 लोग होते थे कि हमें सर बाहर में डाल देना, हमें बाहर में डाल देना। वो ऐसा सब नहीं बोलता था, वो कहीं पे भी काम कर ले, वो बाहर में आएगा, जैसे हम बॉटल लगा रहे हैं वो भागता आएगा, अरे ये क्या है? मैं कहा ये फलाना ब्रांड है। अच्छा ये क्या होता है? क्या होता है? विस्की होती है। कहाँ से आती है? किसने बनाई? क्या करी? वो पूछ के ना और चला जाएगा। इसकी ऐसे पूछ तो सही रहा यार, अगर इफ आई एम स्टैंडिंग हियर आई शुड नो व्हाट इज बिहाइंड। नो ये विस्की है, ये लिक्योर है, ये जिन है, रम है, व्हाटएवर। तो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड रीडिंग लेबल्स। उसने वो कीड़ा डाला कि भाई लेबल तो पढ़। दैट इज द वे टू लर्न, दैट इज द वे टू लर्न, दैट इज द इजीएस्ट वे टू लर्न। 50% ऑफ योर नॉलेज इज राइट देयर, करेक्ट, एंड रेस्ट 50% यू कैन रीड it's फ्रॉम your बुक्स, curiosity then. क्यूरियोसिटी, बुक्स, पीपल, इंटरनेट। करेक्ट। सो मेरे टाइम में इंटरनेट इतना नहीं था, यू नो। सो हम लोग इंटरनेट यूज़ करना, गूगल उस टाइम 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बॉटल्स पीछे, लेबल उठाया, पढ़ा, जो समझ में आया नहीं आया, सर ये क्या है, सर इसका मतलब क्या है। फ्रेंच वर्ड एज यू मेंशन, फ्राम्बोआ, इट्स फ्राम्बोइस, सो यू नो यू कुड नॉट इवन प्रोनाउंस, समझ में नहीं आया है क्या। एंड सो यू डोंट नो द फ्लेवर ऑफ रास्पबेरी। करेक्ट। हम लोग इंडिया में कहाँ रास्पबेरी मिलता था उस टाइम? स्ट्रॉबेरी, शहतूत नहीं मिलता था ना। ये गूसबेरी, स्ट्रॉबेरी, दिस वर रेयर, यू नो। 5-star होटल आल्सो, इट वाज नॉट लाइक एक्सपेंसिव स्टफ, सो यू वोंट ईट। सो हमें टेस्ट नहीं पता है। सो हाउ डज इट टेस्ट, हाउ डू यू रिलेट? यू कांट रिलेट टू एनीथिंग। पढ़ा है, रट लिया, बट सवाल पूछना, वो क्यूरियोसिटी अंदर से कि ना ये क्या है,
ये क्या है, लेबल से तो कुछ एक्सटेंड तक तो पता सकता था, बट उसके बाद क्या जानना है, दैट इज योर क्यूरियोसिटी विच ब्रिंग्स आउट करेक्ट द बेस्ट। करेक्ट, क्या टेस्ट प्रोफाइल है, हाउ वी कैन यूज इट, कैसे अपसेल करोगे, ये चीज़ खुद से है, ये चीज़ खुद से। तो ये था, ये स्टार्ट हुआ एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई मिस्टर विमल वर्मा से, अनदर आई थिंक वन ऑफ द लेजेंड्स इन इंडियन होटल इंडस्ट्री नाउ। तो उनका और हमारा कनेक्ट हो गया। कैसे कनेक्ट हुआ, पहले तो वो ईगो से ईगो टकराई एक मेल ईगो होती है ना, तो हम उनको देखते थे, ही वॉज असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थे, तो हमको देखते थे यार ये बंदा ना, हम लाइक शार्प वॉक करेगा, ऑलवेज ऑन टाइम, नाइस हेयर कट, यू नो, ऑलवेज है उस बंदे में बात है। सॉरी, हम बैंक्वेट में गए, भाई ये कर दो वो कर दो, लेट आए हो घर चले जाओ, नहीं चाहिए। मैंने कहा घर चले जाओ, 5 मिनट लेट आए हैं भाई, क्या हो गया इतनी दूर से। तो ये सब चीज़ें हुई, स्टार्टिंग में ईगो क्लैश हुई, बट धीरे धीरे देन वी अंडरस्टूड कि भाई ये काम ही कर रहे हैं ना, तो एंड ही शोड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन अस एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो वो बात हमें काफ़ी छुई कि यार हमें पूरा एक स्टेशन हैंडल करने के लिए दे दिया बैंक्वेट में, यू नो, देयर इज अ कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन और कॉफ़ी मशीन है, तो आप कॉफ़ी मशीन मैन करोगे, यू आर मैनिंग द कॉफ़ी मशीन, यू आर डूइंग एवरीथिंग, नॉट दी रेगुलर बैंक्वेट स्टॉक। तो वो एक बहुत आज सुनने बहुत छोटी चीज़ है, बट बैक इन द डेज कॉफ़ी मशीन आज वाली नहीं थी, बटन वाली थी, जिसमें दूध खत्म हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती है, आपको मैनुअली भरनी पड़ती हैं, तो वो आप मैन कर रहे हो कॉफ़ी मशीन। देन ही इज कॉलिंग अस, साहिल सब ठीक चल रहा है, 2 कप लगा रखे हैं, हाँ जी सर सब ठीक चल रहा है, दूध खत्म होने वाला है, कॉफ़ी बीन्स खत्म होने वाली, ओके ऊपर कैप्टन स्टोर है जाके ले लेना, तो यहाँ पे तब तक दूसरा बंदा भेज देता हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटे इंस्टेंसेज हैं, बट हमें बहुत अच्छा लगता था कि वो डायरेक्ट कॉल करके हमें बोल रहे हैं, नहीं तो जो इंटर्न्स होते हैं उनको कोई ढंग से मुंह नहीं लगाता, इफ आई हैव टू से दैट वर्ड। नो दैट्स ट्रू। तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। देन ही अगेन ही इज हिमाचली, उनके फादर भी आर्मी में थे, तो वो एक कनेक्ट ना ज़्यादा बैठ गया आई थिंक, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की समझाने में चीज़ें। ड्यूरिंग दैट 6 months, नॉट 6 months एग्जैक्टली, थोड़ा सा कम 6 महीने से, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पीरियड होता है, आफ्टर दैट देयर वाज अ सेरेमनी दैट वाज हेल्ड एंड देन people were distributing prizes कि भाई thank you for coming this one, and then we have the best industrial trainee साहिल चौहान, You were? boss। मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये सेरेमनी होती है, करनी होती है, नहीं भी करनी होती। होटल को क्या यार, होटल करे भी ना सेरेमनी, That's a good way to motivate. मोटिवेट। बेस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेल साहिल चौहान, मैं तो समझ नहीं आया क्या हो गया भाई, मैं तो गया खी करते हुए, मैडम से ट्रेनिंग मैनेजर से सर्टिफिकेट लिया, शायद बुके था साथ में, कुछ चॉकलेट सी लिया और जाके बैठ गया। मैं 2 मिनट तो मैं प्रोसेस ही कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है दोस्त, क्या हो रहा है। तो आई थिंक दैट वाज वो, फिर मैंने पापा को जाके दिखाया, मेरे पापा उस दिन हम गए थे, और ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई कुड डू। मेरे को बहुत खुशी हुई उस चीज़ से। मैंने कॉलेज में जाके दिखाया, कॉलेज में पता क्या कह रहे लोग, कह रहे कौन है ट्रेनिंग मैनेजर, जानता है तू उनको अरे मैं कहा भाई नहीं जानता, मेरे को लोगों, अच्छा मैं लोगों को बता रहा हूँ कि यार ये मैंने अर्न किया है, ये मैंने कहीं से छपाया नहीं है, बट एनीवे वो बढ़िया था। बट वो मेरे को बहुत उसने बूस्ट दिया उस चीज़ ने। तो हाँ, ये कॉलेज का टाइम था। देन सेकेंड ईयर अच्छे से हो गया, देन थर्ड ईयर, बाय द टाइम आई केम टू थर्ड ईयर, मुझे अपने वो दोस्त राहुल की बात की भाई करना है, तो आई स्टार्टेड रीडिंग फूड एंड बेवरेज फ्रॉम द वेरी बेसिक बुक दैट वी हैड, धवन। आई हैव नो आईडिया, मैंने आईएचएम नहीं किया। नहीं, ओ सॉरी, तो आई थिंक विजय धवन करके एक बुक होती थी, वेरी बेसिक। तो किसी ने बोला भाई पहले ये पढ़, वो पढ़ी। उसके बाद देन देयर वाज अनदर बुक कॉल्ड द बेवरेज बुक, उसका असली नाम क्या था मुझे नहीं पता, बट पीपल यूज्ड टू कॉल द बेवरेज बुक। तो वो मैंने फोटो स्टेट करवाई, वो इतनी मोटी बुक और लॉन्गर फॉर्मेट, सो एक पन्ने में 4 पेजेस थे उसके। ओके, मैंने वो चाटना स्टार्ट की, देखा, पढ़ा, ये वो हर चीज़, और मुझे मज़ा आने लग गया उसमें। बाय द टाइम थर्ड ईयर में कैंपस प्लेसमेंट्स होने लगती हैं, कंपनीज कम एंड दे लास्ट यू क्वेश्चन। उस टाइम तक मुझे ऐसा लगता कि मैं इतना हो चुका था कि आसपास मेरे साथ बहुत से लोग मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन में जाने से डरते थे। ओके, कि यार ये बंदा ना बात काट देगा, ये बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है। कमांड ओवर द लैंग्वेज इंग्लिश पहले से बहुत बेटर हो गई थी, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, तो आप बात करते हो लोगों से अंग्रेजी में, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। ओ सर के लिए सेलेक्ट कर दिया, ओब्रॉय सेंटर ऑफ आई डोंट नो एजुकेशनल समथिंग, आई डोंट नो, ओसर है, एंड देन देयर इज ओसीएलडी फ्रॉम द ओब्रॉय। सो ईदर यू गेट selected as an OSER or OCLD. So OCLD is very बड़ा लेवल है। Anyway, तो OSER में सिलेक्शन हुआ, and then I realized people actually talking about my back. क्या हो गया ओवरऑल वालों को, साहिल चौहान को ले रहे हैं, ये इतना फालतू। Why such animosity against you? मतलब क्यों? Because you were a failure, that's why? No, first year में? Maybe also because my personality was very vibrant. How people thought कि भाई होटल के लिए ठीक नहीं, क्योंकि होटल में क्या चाहिए, क्रिस्प, चुपचाप, शूशां ज़्यादा नहीं, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट। बट आई ऑलवेज हैड दिस वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, आई थिंक आउटस्पोकन एंड आउटगोइंग।
तो ऐसा काफ़ी लोगों को लगा कि यार ये तो गलत सिलेक्शन. बट एनीवे आई डिडंट जॉइन OCLD after that. Sorry, the Oberoi's hotels after that. I went back to work in one of another 5-star hotels in Delhi, in Connaught Place. तो मेरे को हायत में ही काम करना था because of the specific reason that I've seen people, I want to be like them, you know, and I got recognized there as well. तो मुझे वहाँ काम करना था. But वहाँ पे उस टाइम पे हायरिंग नहीं हो रही थी when we passed our college. तो एक one of the 5-star hotels in Connaught Place, we started a couple of people started there as new joiners. So I started working there. It was so amazing. पहला जॉब है, बहुत ज़्यादा उसके लिए enthusiastic हैं, टाइम से पहले पहुंच जाना है, people were impressed. But अब हुआ क्या, क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि वो होटल 5-star तो है, but it is not, the standards are not that amazing, or probably I don't see myself growing in that property. मेरे साथ जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया था, सबने सैलरीज ली और छोड़ दिया. मैं बेवकूफ़, मैंने 1 महीने के काम करना है, उनको रिज़ाइन दे रहा हूँ, तो सैलरी नहीं मिली. और हायत में 1 महीने बाद ही लग गया. स्टार्ट हो गई थी. तो आई वांटेड टू लीव इन अ वेरी गुड नोट कि भाई अनलाइक अदर पीपल जिन्होंने सैलरी ली और कल से फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मैंने ऐसा नहीं किया. तो मैंने कहा यार नहीं, आई रिज़ाइन प्रॉपरली. तो आप रिज़ाइन करोगे प्रोबेशन में तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी. फॉट विद दी AHR, बट ही इज़ लाइक नो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. मैं कहा फॉर यू गाइज दैट इज़ बेटर इफ अ पर्सन टेक्स अ सैलरी, doesn't respond from the next day. There is another person who's at least writing you, has guts to say that I need to resign because I don't see myself here, or I am going to where I love to work. To that person you're not paying. That's very nice. And I said a couple of things, then it's okay, I forgot it. So I went to Hyatt because obviously they hired, the interview happened, but they were pretty impressed because I knew the processes, I knew the people, and I've worked there everywhere, everything. So it was pretty easy to get in there. But अब आप किसी होटल में ज्वाइन करते हो ना, तो इनिशियली आपको या तो ऑल डे डाइनिंग में डालेंगे, करेक्ट, रूम सर्विस में डालेंगे, या बैंक्वेट में डालेंगे यार. तो 3 जगह. अब मेरे को यहाँ काम नहीं करना था, मेरे को काम करना था बार में, क्योंकि हमने बार से आए. तो अगेन हमने फ़ोन किया, मेरा सीनियर बाहर में काम करना है यार, लेटर मतलब इंटरव्यू दे दिया है, ज्वाइनिंग हो गई है. किसको फ़ोन किया? विमल सर को. ओके. उनको बोल दिया, वो छुट्टी पे थे. बट एनीवे, तो अब जितने लोग बैठे हैं, अब मिस्टर जो लोग हायत या इंडियन होटल्स को जानते हैं, मिस्टर शाजी पॉल का नाम सुना होगा. उनका टेरर था बहुत ज़्यादा वहाँ पे. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. वो व्हाट वाज ही वॉज असिस्टेंट F&B. ओके. And he had stayed with the hotel for a very long time period, so he knew in and out everything. He was very passionate hotelier, and I think a lot of people mistake his personality because he's again a very strict person, but he is very particular. अरे ये ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, right? But anyway, so he came and he is taking names. Okay, this guy, this outlet. This guy, this outlet. साहिल कौन है? ये मलयाली guy. साहिल कौन है? I stood up. I like, sir, it's me. Polo Lounge. So Polo Lounge was a bar. So everybody was surprised. नया लड़का यार, उसको सीधा बार में डाल दिया. I was like, भाई मजे आ गए, अब आएगा जिंदगी का असली मजा, अब बार में काम करेंगे, this and that and so and so. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. Again, it was not easy because I wanted to be a CLT in Hyatt. What is CLT? As Mr. Vimal Verma was a CLT in his day. So CLT is a corporate leadership trainee, equivalent to any CLT and other workshop programs in other hotels and so. So that makes you manager. So that makes you assistant manager. Okay. So CLT program is it's a fast track training program for 1 year, and then you become assistant manager for whatever level you have started. तो वो मुझे करना था. तो कॉलेज से select नहीं हुए उसके लिए. Then so I worked every day with that aim in my mind कि भाई मुझे CLT बनना है, मुझे मैनेजर बनना है. So Polo Lounge में कौन सा ईयर था ये? This I joined in 2010. 10. Okay. I joined in 2010. I worked there in Polo Lounge. I worked for a few months. Then I got my shoulder dislocated. Then people thought I'm not good enough for that place. They sent me to all day dining. Because of your shoulder dislocation. So my shoulder dislocated once. I think I was playing table tennis in the hotel late night. I think 2:30 whatever time. So I dislocated my shoulder playing that, and obviously there is like less movement. You have to tie your hand like this, this and that. You can't shake. You can't serve properly. And I got to know, and I was told that because we want to take care of you, we are transferring you from Polo Lounge. Okay. If you want to take care of me, you transfer me to where there is less usage of this hand. I was transferred to all day dining, where you have to use your hand more, lifting weights, as in like fatti, the trays and everything. Yeah. There's more work. More work has never been a challenge. Now, doing these things is make you think. But anyway, I went there. तो मुझे बोला भाई अब तो तू यहाँ पर आ गया है. And I also thought that this is what I have to do. So being a bartender, now you have to
go to the Alder Dining, get up at 5 a.m, be at the hotel by 6:30 or whatever. वो टोटल शिफ्ट हो गया. वो दिमाग को समझ में नहीं आया कि भाई करना क्या है, कि आप पूरे कॉलेज के 4 साल भी लेट उठे हो, अब सुबह नौकरी के स्टार्टिंग थोड़े टाइम भी लेट उठे हो, और एकदम सुबह से उठना पड़ रहा. तो मैं लेट हो जाता था, और मेरी नींद जैसे कि हमारी नींद होती, बेफिक्रा नींद होती थी, तो कभी लेट हो रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा हूँ. तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे, रोहित श्रीवास्तव, उस टाइम रेस्टोरेंट मैनेजर थे. ही हेल्प मी. तो उन्होंने मेरे को पकड़ा, एक दिन में लेट आया. क्या हो गया? सर कुछ नहीं. क्यों लेट हो गया? मैं कहा सर नींद ही नहीं खुली. एक काम कर, आज का टाइम सोच, तेरे को क्या शिफ्ट करनी है. तुझे 11 बजे आना है, मुझे बता कि मेरे दिन में 11 बजे आना है. तुझे सुबह 7 बजे आना है, तो मुझे बता कि सुबह 7 बजे आना है. 3 बजे आना है, तो मुझे बता कि तुझे 3 बजे आना है. तो सोच. और मैं बेवकूफ़ था, मुझे बोलना चाहिए कि सर मुझे 11 बजे आना है. तूने क्या बोला? मैं कहा नहीं सर 7 बजे ठीक है. ईगो कि ऐसे कैसे भाई, हम नहीं उठ सकते क्या? बट एनीवे, तो अब मैंने काफ़ी अपने मेंटोर्स से जो होटल में थे, मैंने कहा यहाँ पे क्या करूँ, बिकॉज माई इंटरेस्ट इज़ नॉट फूड. तो उन्होंने बोला एक काम कर, जो पीछे डिस्पेंस बार है, जो रूम सर्विस एंड ऑल्डर डाइनिंग बोथ दे यूज दैट बार, करते हैं, बट इट इज़ लेफ्ट लाइक अ प्लेस, इट डजंट बिलोंग्स टू एनीवन. उस बार को मेंटेन कर, उसमें लॉक लगा, या कुछ ऐसा कर दैट इफ पीपल यूज इट, इट शुड बी मेंटेन्ड फॉर द अदर पर्सन, इट शुड बी ईजियर. ठीक. तो वो चैलेंज हाथ में लिया. अगेन नाउ इफ यू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट बैक इन द डेज इट्स स्टिल अ चैलेंज इन a lot of every hotel. In every hotel, if it is a dispense bar, it will be in a mess. Yeah. तो उस चीज़ को बढ़िया करना स्टार्ट किया, ब्रीफिंग्स में बोलना स्टार्ट किया. नाउ साहिल विल से समथिंग, ओके व्हाट गाइस, दिस इज दिस, लेट्स लीव इट द वे. आपने लेमन काटा है, काट के वहाँ रख दीजिए. उसका जो वेज है उसको नीचे डस्टबिन में फेंक दीजिए. बेसिक. तो सबको जाके बोलना, सबको जाके नोटिस करना. अगर मुझे पता चल गया कि कोई ड्रिंक का ऑर्डर है, तो मैं पीछे चले जाता था उसको देखने की क्या कर रहा है बंदा. तो उनको मैंने ऐसा फील कराया कि मैं तुम्हारी चुगली कर दूंगा, बट आई डोंट यूज टू डू दैट. बट मैं उनको फील कराता था कि बेटा मैंने देख लिया. तो वो मेरे को जैसे देखते थे ना, वो क्लीन कर देते थे थोड़ा. तो ये धीरे धीरे ठीक हो गई. पहला दिन था कैफ़े का, तो आवर ऑल्डर डाइनिंग वाज कॉल्ड कैफ़े. तो रोहित सर ने बोला जस्ट गो अराउंड बुफे, हर चीज़ का नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है. कोई डिप भी है ना, मुतवेल, पहली बार नाम सुना था. जो अरबिक अपने ये है, हुमुस, हिंदी में ह्यूमिडिटी को हमस बोलते हैं ना. तो हमस में हुमुस भी वही चीज़ होती है. तो वहाँ से हर चीज़ का नाम लिखा, खुद जाके थोड़ा सा देखा, पूछा, तो वहाँ से थोड़ा सा फूड समझ में आया. नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि नहीं भाई फूड नहीं चाहिए. एक्चुअली दिस मेरे साथ भी ऐसी हुआ. माइंडसेट है. बिकॉज मुझे भी लगता था कि यार मुझे फूड, मैं बार में स्टार्ट किया, मेरा करियर भी बार में स्टार्ट हुआ. बट जब मैं ऑल्डर डाइनिंग में हेल्प करने जाता था ना, मेरे से नहीं होता था. मेरे से वो फट्टी नहीं उठती थी. मुझे फूड के बारे में जानना नहीं था. बट ये ट्रांजिशन तब हुआ जब मैंने 9 साल काम कर लिया बार में. देन आई फेल्ट लाइक मेरे पास कुछ है नहीं अब देने के लिए बार को. लाइक इनोवेशन खत्म. अब कितना मैं आगे कॉकटेल क्रिएट करता रहूँ, क्या क्या करता रहूँ, तो ख़त्म हो गया. तो मेरे पास कुछ है नहीं. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे अगर इस इंडस्ट्री में पढ़ना है आगे, तो मुझे फूड भी जानना ज़रूरी है और अदर डिपार्टमेंट में जाना ज़रूरी है. दैट्स व्हेन आई मूव टू इन रूम डाइनिंग. मतलब टोटली ऑपोजिट फ्रॉम अ बार फेसिंग द गेस्ट टू बैक ऑफ द हाउस, जहाँ सिर्फ फ़ोन की घंटियाँ के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता. सो इट वॉज, आई थिंक दैट मूव वॉज द बेस्ट डिसीजन आई टुक, बिकॉज वहाँ से पूरा ट्रांजिशन हुआ एज एन ओवरऑल F&B पर्सन, नॉट जस्ट बेवरेज एक्सपर्ट. बट यू आर राइट कि वो माइंडसेट है कि नहीं मुझे खाने के बारे में जानना है. बट इट इज़ द ओवरऑल थिंग. यस, beverage makes you an expert and makes you look apart, because people are not good in food knowledge. Correct. In general. और हम लोग ये realize नहीं करके, it is the department is called food and beverage for a reason. Yes. At the same time, the beverage in every restaurant, the cuisine keeps changing. Correct. Japanese cuisine, Italian cuisine, Indian restaurants. So every cuisine keeps changing. The beverage is same. So yes, it has a weightage, but the main element is food. You have to learn. Yeah. So what you're saying is the mindset, right? So it's a mindset. So I think that helped me a lot also. तो धीरे उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र कैफ़े से मेरे को बारटेंडर बना दिया गया. कैफ़े में पोजीशन दे दी गई. आई डोंट नो. अच्छा, और ये मैंने कभी, आई नेवर हैव आस्क्ड फॉर अ प्रमोशन until today. Never have I asked for. I don't know. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बट आई थिंक ये आज की डेट में चलती नहीं है. बट आई थिंक कि अगर मुझ में वो चीज़ है, तो द पीपल हु आर अबव मी, दे शुड सी कि भाई इसमें ये चीज़ है एंड वी शुड गिव दिस. या बट आजकल नहीं चलती. तो उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा ही हुआ. कैफ़े में मेरे को बुलाया गया ऊपर F&B ऑफिस में. दिस इज अ लेटर. मैं घबरा गया. मैं कहा भाई लेटर किस बात के लिए दे रहे हैं? तो देखा तो यू हैव बीन प्रमोटेड एज अ बारटेंडर, 1 लेवल अप, थोड़ी सी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ.
मैं बड़ा हैप्पी था. In the same place, in the same coffee place. It's a coffee shop. So coffee shop was not small, हाँ, 170 Yeah, of course. plus covers. उसमें भी एक चैलेंज था कि भाई ये तो बाहर का लड़का है, इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, इसको तो मुझे वो चीज़ छू गई. मैं कहा बेटा अच्छा, स्टेशन होल्डर आज की डेट में बहुत ईजी है. बैक इन द डेज स्टेशन होल्डर मीन्स कि भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग, इज अ पिलर ऑफ द आउटलेट. ठीक है, तो हमारा एक स्टेशन होता था कैफे में, स्टेशन नंबर 4, सबसे बिजी, सबसे कंजस्टेड. तो वो स्टेशन जो हैंडल कर रहा है ना, मतलब कि वो चीता लड़का है वहाँ पे. True. तो हमारे 2-3 दोस्त होते थे, एक अरशद और एक सौरभ और एक रविंदर टोपाल, ये सब लोग, और उनसे पहले और भी रहे होंगे, बट मेरे टाइम में ये लोग थे, ये लोग हैंडल करते थे वो स्टेशन. तो धीरे धीरे करके आप स्टार्टिंग में एक बंदे को स्टेशन 1 देते हो, बहुत ही सिंपल सा स्टेशन है. स्टेशन 2 देते हो, स्टेशन 3 भी ठीक है, 4 और 5 बहुत बड़ा है और दूर भी है. वो लेजेंडरी लोग ही हैंडल करते थे. 5 ना एक तो बड़ा भी है और दूर भी है. तो उसका जो रनर है ना वो तेज होना चाहिए. क्यों? बाय द टाइम वो खाना आ रहा है और जा रहा है ना, उसको बहुत टाइम लग रहा है, और बीच में कोई गेस्ट पकड़ भी सकता है उसको, अरे सर लिसन एक्सक्यूज मी, तो वो वहाँ रुक जाएगा, तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है. तो वो 2 स्टेशन 4 नंबर खास था. तो मुझको ये हुआ कि भाई 4 नंबर होल्ड करना है, मेरे को भी स्टेशन होल्डर बनना है. कैसे बनना है? काम दिखाओ. करके स्टेशन होल्डिंग. मैंने बोला भाई मेरे को करनी है स्टेशन होल्डिंग, ये करूँगा. ठीक है करो स्टेशन होल्डिंग. तेज तो है ही, बस सीख ली ये चीज़ें. तेज कैसे जल्दी कैसे हो सकती है, वो करा, वो भी कर लिया. उस टाइम के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. तो उसके बाद फिर मैं ट्रांसफर वहाँ से चाइना किचन हो गया, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, वहाँ पे काम किया थोड़ा बहुत 4-4 बजे तक. वहाँ का बार लेट चलता था. फिर वहाँ तब तक मेरे को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 2 साल हो गए थे काम करते करते. देन CLT का वो आया, Okay. कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग, And you got selected? एंड आई गॉट सिलेक्टेड. Very nice. Year before I was not selected, but this time when I was, I think I won't say least interested, but I didn't had that much of enthusiasm. Least hoped. Least hoped, I would say, right word. Least hoped, but I still applied for it, and I was pretty clear that this is what I am, this is what I want, this is I can do, and they selected me as the internal corporate leadership trainee. Again, लोगों के पास तो बातें हैं. इसके पापा ने जैक लगाई होगी ब्रिगेडियर से, इसे CLT बना दो. भाई जिसको जो बोलना है बोलते रहो. You can't stop that. अपने को कद्दू फर्क नहीं पड़ता. हमें ये करना था, हम यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से आगे लेके जाएंगे. तो आई थिंक द मैनेजमेंट सॉ सम पोटेंशियल, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, थैंकफुल टू देम. बस फिर वहाँ से अलग जर्नी, कॉर्पोरेट लीडरशिप ट्रेनिंग. तो मुझे होटल ज्वाइन करके 2 ही साल हुए थे. अब इसका मतलब है कि अगर मैं ढंग से अपना प्रोबेशन कंप्लीट करूंगा CLT का, आई विल बी अ असिस्टेंट मैनेजर इन 3 years of time. Okay. From being a fresher to the end of 3 years, I'll be an assistant manager. Okay, in total 3 years. 3 years of time. Biggest challenge is not to achieve. The biggest challenge is कि जो आपके सराउंडिंग में लोग जो पहले से काम कर रहे हैं ना, वो आपको कैसे देखेंगे. Correct. How and why should they respect you? You have to earn it. You have to earn it. तो मैंने ये चीज़ समझ ली थी, और मैंने कहा अर्न तो भाई काम से ही करवाएंगे. Correct. ना नॉलेज एंड काम, बस it's it. काम से करेंगे. लेट जाएंगे जल्दी आएंगे, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे काम पे, और खड़े रहेंगे. एक बार भी ये नहीं करेंगे अरे थक गए, अरे हो गया. किया. आई थिंक वी गॉट रिस्पेक्ट ऑफ पीपल. तो आई थिंक 5 years in Hyatt, learned a lot. Was great exposure. So what was your failure there? What was my failure in Hyatt? यार मैं failure तो नहीं बोलूँगा, but I think I was not a person who would amuse seniors or who would work to make people happy. I think that was the one. And I was in my thought process, I was little stubborn. और मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं थी कि यार कोई सामने कैसा है पीछे कैसा है, वो जनरली लोगों को नहीं होती, बट वो था, थोड़ा बहुत होता ही है हर जगह पे. तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आती. तो उसकी वजह से लोग मुझे देखते थे यार इससे नहीं होगा, बट मुझे पता कि मैंने किया, होगा भी और करूँगा भी. रेजिडेंसेस खुल रहे थे हायत में. Okay. So me and one of my senior colleague, Chandan Thakur, we were given the opportunity to handle that. उस टाइम में रूम सर्विस में था, in room dining. So we were given the opportunity to open up that place, residences. अब आपका पूरा तरीके से चीज़ें तैयार नहीं है, वहाँ जाने का रास्ता, बैक एंड वर्क बहुत डिफिकल्ट था. वहाँ जाना कैसे, आपको लिफ्ट लेके नीचे जाना है, पार्किंग में, पार्किंग से सामान लेके जाओगे, रेजिडेंसेस की लिफ्ट पकड़ोगे, ऊपर जाओगे, सामान रखोगे, वापस आओगे, पूरी चेकलिस्ट तैयार करना. Everything we did, both of us, we did from the scratch. And I think we didn't get the credit for opening up those residences, considering we only had 4 staff in room dining, 1 order taker and 1 manager on duty. It was either myself or Chandan Senior. So we didn't get the credit. So हम होटल को भी मैनेज कर रहे हैं. अगर एक रेजिडेंस अपार्टमेंट भी अगर फुल है उस टाइम पे, ऑक्यूपाइड है, and then we were also managing the owners with I think 2 or 3 people on shift. Nobody actually cared. They just wanted the work to be done. But I think we did that is commendable. In room dining,
is the most toughest department in the entire F&B. People say bar is tough, banquet is tough. Banquet is to an extent is, but banquet is still predictable. Like, you know, banquet में क्या है कि आपका planning और execution है. You know ये event है इतने time से इतने time. Planning is the core. अगर आपकी planning सही है तो execute भी अच्छे से हो जाएगी. In room dining is unpredictable. क्या कब कौन सा बम फटेगा किसी को नहीं You never know. और कहाँ से फटेगा ये भी नहीं पता. Crew आ गया. They need food. Yeah. उनका एक very set standard food है. Majority of the crews का chicken tikka, masala, and then you have a naan, a bit of fries. Set. But then we have corporate office जिनको 1:30 बजे ये set खाना चाहिए ही चाहिए. और 1:30 बजे ही चाहिए. और 1:30 बजे ही चाहिए. और अगर लेट हो गया ना, then your F&B, then this and then with that one instance, your career can be decided in the hotel. भाई you are not good enough. अरे भाई, come on man. At least see, there are only 2 waiters, 3 maximum. Okay, there is 1 order taker and then 1 person. Residence, corporate, hotel, क्या करेगा आदमी? Plus housekeeping, plus front office, plus engineering. हाँ, इनमें भी तो वो है ना कि चाय दे दो. सब है. So you get constant call. जब मैं IRD मैनेजर था, मैं कैबिन में जो फ़ोन बजता रहता था, मैं 2 साल था IRD मैनेजर. 2 साल बाद भी अगले 2 साल तक वो घंटियाँ बज रही थी कान पे. It was that. Saying what it is, you know. If you want me to do my work properly, give me the freedom to do my work properly, or give me 10 other people. कि भैया आप सिर्फ corporate office में ही सर्व करोगे. Then it's okay, no problem. You know, उसके बाद उनको चाय रिपीट भी चाहिए. चाय अच्छी नहीं थी. तो मैं कहा भैया ये ड्रामे हम नहीं झेल सकते 2 वेटर्स के संग. ठीक है? Then he was like, oh, and then he left. Left means that he understood that my things make sense. So how long did you work in Hyatt? 5 years. 5 years. And why did you leave? So then it became monotonous, you know, at Hyatt. I worked in all the restaurants, 4 specialty restaurants, banquet, Regency Club, in-room dining, bar. I didn't see myself growing there. And मेरा हो गया था वहाँ से. And I said, you know, I don't see myself. But in between you competed in some competition as well, right? Couple of competitions. The first competition I competed was in 2011. In that competition, I was the second runner-up. तो वो competition मेरे लिए इतना important था क्योंकि वो मेरा पहला competition था. And I was representing the hotel. I went forward and was judged second runner-up. I got cash prize of 5,000 rupees. I competed in the same competition next year. I was the first runner-up. Okay. This time I got 15,000 rupees. Okay. That 15,000 rupees and some money from my side and from my father, I took that money and bought my Royal Enfield Okay. Bullet. And I was on top of the world at that point. कि भाई, this is me. This is my earning. Working. I have money which I'm giving to my parents and I have got my Enfield right in front of me. It's not just any bike. It is Royal Enfield Bullet. I was very happy. I think, yeah. So उससे cocktail competition से exposure भी मिला because we meet a lot of people. Correct. We meet the judges who are already the gurus, experts in the industry. We met brand people who tell us about, you know, how things are. And I think it was a great exposure. I think that is... I'm sorry to cut you. I met Hemant Pathak in the first competition. I met Abhishek Shukla, our dearest friend there. We met a few other people who were very well known in the industry back in the days. Yeah. So yeah, and I keep telling all the young bartenders also that you must participate in competitions. It doesn't matter you win or lose, but it gives you a exposure which opens up your doors. You don't even realize कितने तरीके से कहाँ से कौन चीज़ें मिल सकती है आपको. आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होता है. आपका connection with the community is getting stronger. Correct. You're learning something from the best of the best. Correct. You know? So it's not just winning the competition, it is about participating. So yeah, absolutely right. You know, all these legends you named are also part of that process, you know. Correct. So amazing. उसके बाद फिर हायत छोड़ने के बाद कहाँ गए? हायत छोड़ने के बाद तो मेरे चाचू ने ही put my name forward in one of the beverage companies is here. तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उनको फ़ोन किया basically just like we used to chat कि काम कैसा चल रहा है. So I wanted myself to establish in India first before I could come to the UAE. This was my mind and that's why I worked in Hyatt for a good amount of time. तो वो कहते रहते थे कब when do you want to come, let us know ऐसा no, because we can actually get you in ऐसा. तो मैं कहा नहीं चाचू, I want to work there for a little while. I want to understand basics. तो कल को मैं आऊँ ना तो I should be on the top. I should not be the one who's, you know, learning the basics there. So I worked there and then when it was almost over
and I thought that it's the best time to move. So I told him that this is it. He's like, sales में काम करेगा? I said, कर लेंगे sales में भी काम. So I thought the hotel sales. Okay. I thought office होगा, आप सुबह सुबह जाओगे, marketing meeting करोगे, लोगों को rooms बेचोगे, banquet बेचोगे. But and least I could see that it was beverage sales. So one of It was a beverage company. Beverage company. It was a beverage sales. So I came, interviewed in I think 2015. I came for a visit, and I got interviewed. And then he asked me about, what do you know about brands? What is this? What whiskey? What is a vintage? What is a year statement? This is very basic question. So I was laughing in my mind because मैं hotel industry से आया हूँ और आप मेरे से पूछ रहे हो कि whiskey single malt में क्या फ़र्क है और 12 साल और vintage में क्या फ़र्क है. तो I was laughing in my mind, but I told him, I sent you कि vintage होता है, it can never come back and so and so. तो anyway, he said, okay, perfect, we'll come get back to you and so things. So I went back to India. Started working obviously again there था. तो ऐसे एक दिन बात हुई था, तो रिज़ाइन किया. मैंने कहा अभी नहीं किया. अरे करना यार, जल्दी जल्दी कर. मैं कहा यार उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया. वहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, तू करना. द मोमेंट आई रिज़ाइन, इट वाज अ 2 month नोटिस पीरियड. इनका कंफर्मेशन आ गया दैट यू गुड टू हायर. देन आई मीन लेटर आई रियलाइज देन दैट इट वाज beverage sales, so retail sales basically. So it's a funny story. I was interviewed for Abu Dhabi. When I landed, I was given the opportunity to work in Northern Emirates retail, but then actually I started working in Dubai Duty Free. Okay. For that specific company brand, and I was, for a very short time period, I was one of the ambassadors to sell, the promoters basically. They're also called the BAs. And then I soon quickly became the team leader for the team. So I've been handling, I think, a team of 12 odd ladies who were selling, and I was so I worked there as well for a good 5 years, and then COVID happened, and then things progressed. So in between also you quit that and joined restaurant industries as well. Yeah, so I mean that's what happened. So for 5 years I was doing again the very same basic work in retail. तो अब मज़ा नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही मोनोटनस हो गया. एवरी डे यू गो टू द एयरपोर्ट, यू सी एवरीथिंग सेम. पैसेंजर्स का फ्लो कैसा है, कौन सी शॉप में, बिकॉज आई थिंक 12 डिफरेंट शॉप्स, बिग एंड स्मॉल. पैसेंजर फ्लो कहाँ पे ज़्यादा है, मैनिंग कहाँ पे ज़्यादा चाहिए, टाइमिंग्स क्या बढ़िया बैठेंगे, एंड देन यू मैनेज देयर रोस्टर्स, देयर लीव्स एंड एवरीथिंग. यू सेट टारगेट्स, इंसेंटिव्स, दिस एंड दैट. बहुत हो गया था, कुछ ज़्यादा लर्निंग्स नहीं थी. कमिंग फ्रॉम होटल बैकग्राउंड, दैट वाज लाइक पीनट्स फॉर अस. 8 घंटे की नौकरी है, एग्जैक्टली .8 घंटे, थैंक यू, घर जा रहे हैं. तो COVID happened, and then we all lost our job. So for another 5-6 months कुछ नहीं था, and I refused to go back to India because how things were in India. आप बाहर निकल रहे हो, पुलिस पिटाई कर रही है आपकी, and I think that was what it was. So मेरे को वापस नहीं जाना था. मैं कहा यार नहीं, यहीं रहेंगे and let's look for something. कंट्री तो चली रही है, जॉब्स भी होंगी. If I have to be the best, let's try to be the best. तो करते फिर एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, so there's an opportunity of सीनियर सुपरवाइजर. मैंने कहा भाई सीनियर सुपरवाइजर क्या होता है? ईदर देयर इज अ वेटर, हेड वेटर, और देन देयर इज सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर. बोले सीनियर सुपरवाइजर. बोले यही है जो है. सैलरी वाज वेरी लेस. आई वाज लाइक यार क्या करें. आई सेड ओके, लेट्स जॉइन. तो वी जॉइंड दैट. आई जॉइंड दैट प्लेस, एंड it was a pre-opening place. It opened. The company was very bad. They didn't provide us a visa for a year. We worked on tourist visa for a year. For a year. Our salaries were delayed by 2 months and sometimes 3 months. Wow. So how did you manage all these things? So I started living with me and one of my cousins who is in the UAE now. We started living together in Barsha. So every time what used to happen, जब हमें rent देना होता था, तो I used to tell him कि भाई तू दे दे and I'll pay you by 20th, 15th or 20th whenever I receive. तो late salaries थी. तो ऐसा 2-3-4 महीने चला, एंड आई फेल्ट वेरी ऑड कि यार मेरे को अपने, ही इज़ माई कज़न, ही इज़ जस्ट आई थिंक 1 year यंगर टू मी, वी आर द सेम एज. तो उसको मेरे को बोलना पड़ता है कि यार तू पे कर दे एंड देन आई विल पे लेटर. तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, एंड बहुत भारी मन के संग मैंने उसको बुलाया. मैं कहा यार रूम छोड़ना पड़ेगा यार, बिकॉज थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा. वन ऑफ माई वेरी डियरेस्ट फ्रेंड हेयर, उनका ऑफिस खाली था, हिडन ऑफिस हेयर. तो उनका ऑफिस खाली था. उन्होंने बोला कि भाई दिस इज़, आई थिंक अगर तो शिफ्ट हो सकता तो ऑफिस में शिफ्ट हो जाए. So you lived in office? I lived in an office. But ऑफिस में कोई काम नहीं करता था? He was the boss. वो अकेले थे, and everybody from his company was not here. It was somewhere else. तो वो ऑफिस यहाँ पे था. They were doing the work, but उनका जो काम होता था, he used to go out and see clients in different places. तो office was there, but just for the sake of name and the license. So you sleep? I slept, eat, everything in the office. In the office. For how long? 4 months. Wow. And enjoyed it.
If you see from a different perspective, oh, you slept in office, wow, that's sad. But that space was huge. Yeah. It was a huge place, right? They had a small pantry which has a stove, so I could cook omelette, bread, and that was basic. They had a washroom, so my basics were covered. They had shelves to keep files where I kept my clothes, and I put my bedding just next to the glass wall where I could see the sunrise. It was, I think, if I'm not wrong, 27th or 30th-ish floor, so it was high. And I loved it. Trust me, I mean, I loved it. वहाँ internet नहीं था. That was the only challenge. And I think that thing, I won't say forced, that thing helped me to read books. I finished a couple of books in each book in 3 days. What books? I read about books how to make bitters at home. So it's a beautiful book again. And after that, I made my own bitters. You know, the bitters that we use, the aromatic bitters. So I made my own bitters. So it has about different brands. It has what is the basic of bitters, what you need, what exactly how this and that. A couple of more books, but this is the one that I still remember. This was back in 2021, the first quarter of 2021. And then because now people were shifting into their office, he said that bhai yaar, now khali karna padega because now the people are coming. I said no problem. Yeah. I mean, we always cherish the best thing that have done. Then I packed my stuff and then I moved with few of my colleagues. They were staying in the same vicinity there, so I stayed with them, and yeah, so it was so fun. So it was so amazing. So what are you doing currently? What am I doing currently? So I work for one of the beverage brands in the UAE as one of the trade ambassadors. Trainings karni hai, activations karni hai. And if I'm not wrong, you work for one of the reputed brands as a brand ambassador. From a perspective of a hotelier, how is it different to be a brand ambassador and do the stuff what you do and what you don't do, what you have learned in the beginning of your career? So what we do what we do, and what we do what we haven't done before. Yeah. So first is this. Yeah. On a Saturday at this point of time, we are here chilling because we could. I think That we couldn't do it. couldn't do in the hotels. In Saturday, you either have brunches or you have something. You have to be on your toes every time. I think this job has given me the liberty to choose our own timings. It has given us the liberty to work from wherever we want to work. Okay, it gives us the liberty to go around and meet people. So our workplace is not boring. Our workplace, this can be my workplace. Any other restaurant, bar can be my workplace. We meet people that we enjoy every and you time. experience a lot of the restaurants and the bar, who's of the cities. You name the restaurant you've been. Who's of the city, and definitely we go to the most amazing places that are in this country, and even outside the country. I've got the opportunity to travel as well. So we go to those places. We enjoy drinks, we enjoy food, we enjoy the company, and definitely there's a motive behind, which is work. But yeah, all that comes with those enjoyments, I think. So that is, I think, the best part. Timing is great also because we can choose to start late or early. The whole thing is that the job should be done. You choose your own timing and then you keep your things. Yeah. That's amazing. That's amazing, actually. Yeah. I mean, if you look at it from that perspective, but say if somebody wants to join as a brand ambassador or trade ambassador for a alcohol company or a beverage industry. So I think what does person has to do? I think this is the most basic question that we all ambassadors, any brand gets asked, and the basic is your knowledge about beverages in total, right? So be it whatever spirits, be it whatever non-alcoholics, you have to have that knowledge, because knowledge gives you the power and knowledge gives you that confidence to speak. And then is your speaking skills, your vibrant personality, how well you are known in the industry. These are a few of the things. And then you need to, I think you have to be at the right place at the right time. That happens. Because for me, how this job happened was by chance. I was working in that restaurant chain. I worked for 1 year only. And I was working there, and then I met one of my competitors from my last job who used to work in the airport as well. I met him at this restaurant. And I was working, he was with his team. He was like, "Arey, Sahil, how are you?" I said, "Arey, Sanjay bhai, kaise hain aap? And kya kar raha hai, kya nahi kar raha hai?" I said, I'm one of the employees here, senior supervisor in this place. Amazing place, no doubt. The location is beautiful, but the management wasn't great. Anyway, so he said, "Kya kar raha hai, kya nahi kar raha hai?" I was like this and looking for a change. He said, "You know what? We have an vacancy which will be coming up shortly.
resume share करना है, and then we will see how it happened. So from that day until I got the job, I think it was 6-7 months. I mean that's how generally things are. So उनके बोलने के बहुत टाइम के बाद I had an interview हुआ, then I went to India. I left that restaurant job and left to India. My another cousin was getting married, so when one of my very close cousins, she was getting married, तो मैं गया वहाँ पे, we enjoyed and everything. तो मुझे बताया गया कि यार somebody else, you know, who is more experienced than you, who is more traveled than you, is getting the opportunity. I was like, okay, I mean, if it is meant to happen, it's meant to happen. And I was enjoying in India, then I was planning to come back, and suddenly I got a call from the gentleman from the company that Sahil, are you okay to meet tomorrow? I said, no, sir, what happened? No, he's like, वो job के बारे में बात नहीं थी. But I heard that you have hired someone else. अरे नहीं, he didn't accept the offer, this and that. And मन में लड्डू फूटा. And मैंने उनको बोला, surely let's catch up, but I'm flying to Dubai in few days, so let's meet on Monday. I said, okay, perfect. So I met him, and the same things. And I just asked him, कि भाई, tell me when do you want me on board? If you say Sahil 20 days, say it to me. Don't say that we will let you know. You say 5 days, you say today, you say 20 days. I'll wait for 20 days. But say the right thing. Don't keep me in thing. Like, okay. So, bus wo hua, and then same evening I got the offer letter. Amazing. And also this jobs come with a lot of perks as well. It does comes with a lot of perks. It comes with the bit of corporate pressure as well. Obviously, any job will have pressure. Yes. And I think the transformation from where we come from to the corporate is not easy. Yeah. It's not easy. The mindset again. The mindset again, because we are used to do action, like, you know, doing this, doing that, and then suddenly you're sitting in front of a laptop and you're doing reports, you're doing Excel sheets, PowerPoints, and like, what the heck, bro? I mean, I'm not made for this. But it's not what we are made for. It's what we can make out of that. Yeah. True. ये अभी बनाया वैसे मैंने. पुराना है. सही है. हाँ, तो कहीं डिस्क में होगा, ड्राइव के अंदर एकदम से. So what's your ambition now? What's my ambition? What do you want to be? My ambition have always been to live a healthy and happy life, and to leave my mark in the lives of the people I have met. ये होटल की टैगलाइन है, but this is my Motto as thing. well. Yeah, this is what I want to do. There should be a mark. यार हम एक बंदे से मिले साइज. I've just met him once, but यार वो बहुत सही बंदा था यार. I want to be that good guy. I don't want to be like fame, Vera, you know. But I want to be a good guy. You want to be people to remember you. At least I want. If I'm not today, but I want to be a good guy. No, I think you are. Because you leave that impact on people. और वो मैं continuously सोचता रहता हूँ कि मैं यार कैसे अच्छा इंसान और बन सकता हूँ. मैं नहीं हूँ अभी. मुझे पता है. There are a lot of things that I need to work. Even if I shout at someone, और मुझे पता है गलत हो रहा है, but वो हो रहा है. तो मुझे लगता नहीं यार ये नहीं होना चाहिए ना यार. इसको how do I overcome this? So I'm constantly working, thinking on that, and pumping it to my subconscious mind. एक बार subconscious mind में आ गया ना, then it will automatically happen. And I don't have to think about it. What is your regret so far? Regret so far. Ooh, I think I'm really blessed to have the people that I have in my life. उसमें तो कोई regret ही नहीं है. The God has been so kind to help me in the situations I thought कि यार अब नहीं हो पाएगा शायद भी. But I've been helped. वो energy कहीं से आ जाती है. Regret सिर्फ I think एक ही रहेगा कि I didn't follow my passion back then. Be it cricket, be it going into the army, be it trying for acting in the early stages. The time is always there, but I think few things if started early. If you go back in time, what will you choose? Bro, I think I would go for the for army without any fail, because I think Indian Army is the only organization that gives you the tools to do whatever you want. If you want to be an athlete, be an athlete in Indian Army. You still you work, you serve the nation, and then you can come out and you can still do the acting. Because by that time, I think if you're a good, you know people at least, and it can make your pathway easier to go there. I think Indian Army is the best organization that we have in our country. It is amazing. I mean, every day when I see something or learn something new about the Indian Army, and my chest, like, it swells with pride, with a lot of pride. And I think I'm an over obsessed Indian. मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, उसको इंडियन खाने के बारे में बताऊंगा, उसको डिफरेंट इंडियन जगहों के बारे में बताऊंगा. और बात अगर ले दे के कहीं आर्मी में आ जाती है, then I have so many stories, as you were saying, about 71 war and 65 war.
62 wars. There are hundreds and thousands of stories. Yeah, No, so there is. Is there somebody else behind this vibrant personality? Is there a mask at times? no, there is always a mask. There's always a mask. Sometimes we, if I go to vacation, right? We're going to holiday somewhere, even to our hometown. So I just want to sit there and see. वो पहाड़ों को देखना पसंद है. लोग कहते हैं ना माउंटेन बीच पर्सन माउंटेन. आई एम अ माउंटेन बॉय. पहाड़ दिखते हैं ना मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है. तो मुझे वो देखना पसंद है. वो बह रहा है पानी, बहने दो, उसको देखते रहो. तो ये एक मास्क है. और आई थिंक या वही है. बाकी वो डिप्रेशन वाला कुछ नहीं है हमारे अंदर. वो पास भी नहीं आता है. डिप्रेशन आता है ना थियरी. So that's your motivating factor. मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आई स्पीक अ लॉट टू माई सेल्फ. मैं अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बोलता रहता हूँ. जैसे मैंने बताया ना वो सिल्वेस्टर स्टैलोन. सो आई हैव सीन दोज मूवीज व्हेन आई वाज वेरी यंग. आई हैव सीन रॉकी, आई हैव सीन रैम्बो, आई हैव सीन एंटर द ड्रैगन. दिस इज व्हाट माय फादर हैव शोन मी इन लाइक व्हाट हाउ ओल्ड वाज आई थिंक 7-8 years और मे बी बिफोर दैट. तो जब आप ये मूवीज़ देखते हो ना तो वो डर खत्म हो जाता है आपके अंदर. एंड आई थिंक एंड आई फील दिस वेरी स्ट्रांगली. पहाड़ों में हमारे देवी देवता होते हैं तो उनका एक पावर, उनका एक पुश है, वो एनर्जी है कहीं ना कहीं से. एंड आई प्रे टू हनुमान, लॉर्ड हनुमान. वो फील होता है आपको कहीं ना कि आप यार यहाँ मैं फंस गया, मैं ये क्या करूँ, हाउ डू आई कम आउट ऑफ दिस सम हाउ. वो पाथ ना क्रिएट हो जाता है. जैसे कैनवस पे ड्रॉ करते हैं ना, वो बनता चले जाता है, तो वैसे पाथ क्रिएट हो जाता है. और मुझे ऐसा बहुत बार फील हुआ है बाद में कि देवर पीपल हु वर ट्राइंग टू यू नो मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे. बट मेरे लिए तो वो गड्ढा था ही नहीं. कभी भी नहीं था वो गड्ढा. वो लोगों ने खोदा था. मे बी वो खुद उसमें गिर गए या खुद भर गया. मेरे को कभी गड्ढा दिखा भी नहीं. बाद में पता चलता अरे उस रास्ते में गड्ढा था. क्या बात कर रहे हो, सच्ची? मैं तो जंप कर गया. पता नहीं मैं कैसे जंप किया, बट कर दिया. Wow. वो पावर है. No, I can relate to it. What it says, what you're saying. You know, it's not. एक बिलीफ होता है, बिलीफ है. You know, it's totally belief. If you मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है. मानो तो हाँ, मानो तो कुछ भी नहीं है, right? So it's the same belief. Well, I wish you all the best. I think तेरी एनर्जी जो है ना वो itself is motivating and inspiring. I may say that you're annoying, but you're not. I love. This is a genuine part, not for the podcast, but I love talking to you, like because I feel somewhere you rub off that energy on me as well. You know, in many ways, be it fitness, be it cricket, be it smiling, laughing when even if things are bad, or you know, it just your face lightens up my days as well at times. Lovely talking to you. I wish you all the best. You Likewise, know, likewise. You're an amazing boy. And we love you as well. I mean, if you remember, Ravi, थोड़े दिन पहले how I came दौड़ा just for that chai. So yeah, and I was lying on the bed. No, I know. So मजा आया. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for watching this podcast till the end. I hope today's conversation reminded you that every journey has meaning, even the ones that unfold quietly away from the spotlight. I request you, please do 3 things. First, give me feedback on comments, what you liked and how I can improve. Second, share it with at least one person who may get inspired after listening to this. And third, don't forget to subscribe our channel on YouTube and Spotify. Your support means a lot. Until next time, uncommonly common. Thank you.